So first canto, it's chapter 32nd verse. केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Some say that the unborn is born for the glorification of pious kings, and others say that he is born to please King Yadu, one of your dearest devotees. You appear in this family as sandalwood appears in the Malaya hills. Purport. Because the Lord's appearance in this material world is bewildering, there are different opinions about the birth of the unborn. In the Bhagavad Gita, the Lord says that he takes his birth in the material world, although he is the Lord of all creations and he is unborn. So there cannot be any denial of the birth of the unborn because he himself establishes the truth. But still, there are different opinions as to why he takes his birth. That is also declared in the Bhagavad Gita. He appears by his own internal potency to re-establish the principles of religion and to protect the pious and to annihilate the impious. That is the mission of the appearance of the unborn. Still, it is said that the Lord is there to glorify the pious King Yudhishthir. Lord Shri Krishna certainly wanted to establish the kingdom of the Pandavas for the good of all in the world. When there is a pious king ruling over the world, the people are happy. When the ruler is impious, the people are unhappy. In the age of Kali, in most cases, the rulers are impious and therefore the citizens are also continuously unhappy. But in the case of democracy, the impious citizens themselves elect their representative to rule over them, and therefore they cannot blame anyone for their unhappiness. Maharaj Nala was also celebrated as a great pious king, but he had no connection with Lord Krishna. Therefore, Maharaj Yudhishthir is meant here to be glorified by Lord Krishna. The Lord had already glorified King Yadu, having taken birth in his family, although he is known as Yadava, Yaduvir, Yadunandana, etc. He is always independent of such obligation. He is just like the sandalwood that grows in the Malaya hills. Trees can grow anywhere and everywhere, yet because the sandalwood trees grow mostly in the area of the Malaya hills, the name sandalwood and the Malaya hills are interrelated. Therefore, the conclusion is that the Lord is ever unborn like the sun, and yet he appears as the sun rises on the eastern horizon, as the sun is never the son of eastern horizon. So the Lord is no one's son, but he is the father of everything that be. तो भगवान के जो apparent contradictions हैं, that is the beauty of the concept of God, you can say. कि भगवान का जो कॉन्सेप्ट है कि वो अनबॉर्न है फिर भी बर्थ लेते हैं, वो कर्म नहीं करते फिर भी वो कर्म करते हैं, वो सबके प्रति न्यूट्रल रहते हैं फिर भी डिवोटीज की बहुत देखभाल करते हैं. तो भगवान के चरित्र में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे आचार्य उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्ट्रडिक्शन एंड दोज ऑल ट्रू, ऑल आर ट्रू, सारे सच हैं. तो भगवान यहाँ पर किस कारण से आते हैं? बड़े बड़े संत महात्मा मुनि जन अनेक अनेक लाखों वर्षों से इसी के ऊपर गहन चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान क्यों इस संसार में आते हैं. तो भगवान गीता में भी बताते हैं कि मैं क्यों आता हूँ, है ना. जो श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तो भगवान खुद भी बताते हैं कि मैं क्यों आता हूँ, कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आता हूँ, और मैं अधर्मी लोगों का नाश करके मैं धर्म की स्थापना करता हूँ. तो ग्रेट पायस किंग जैसे कि महाराज युधिष्ठिर है, उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए भगवान आते हैं. यदु, उनकी फैमिली में भगवान आते हैं तो उनको यादव, यदुवीर, यदुनंदन कहा जाता है. और जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष मलय पर्वत के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से भगवान, क्योंकि भगवान को यहाँ तुलना की है मलय पर्वत के चंदन के वृक्षों से, बिकॉज वो स्पेशल है. क्योंकि चंदन जो है हर जगह नहीं उगता, है ना. तो वो चंदन के वृक्ष एक ही जगह होते हैं, तो दे आर ग्लोरिफाइड बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फीचर्स. तो हियर कृष्णा, by appearing in the family of Yadava, Yadus, he has actually glorified their family because they were the great pious kings. Yes. So next, anybody? Sumit Prabhu, you have to read.
1.8.33 अपरे वसुदेवस्य देववयां याचितो भयगातः अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्. Translation. Others say that since both Vasudeva and Devaki prayed for you, you have taken your birth as their son. Undoubtedly, you are unborn. Yet you take your birth for their welfare and to kill those who are unenvious of the demigods. It is also said that Vasudeva and Devaki, in their previous birth as Sutapa and Prishni, underwent a severe type of penance to get the Lord as their son. And as a result of such austerities, the Lord appeared as their son. It is already declared in the Bhagavad Gita that the Lord appears for the welfare of all the people of the world and to vanquish the asuras or the materialistic atheists. Okay. So this is clear. Next चलते हैं. Yes. Anybody else? Pradeep Prabhu. भारावतारणान्वे भुवो नाव इवोदधो सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्वात्मभुवार्थतः. Translation. Others say that the world, being overburdened like a boat at sea, is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble. Purport. Brahma, or the first living being born just after the creation, is the direct son of Narayana. Narayana, as Garbho, Garbhodakshi Vishnu, first of all entered the material universe. Without spiritual contact, matter cannot create. This principle was followed from the very beginning of the creation. The Supreme Spirit entered the universe, and first living being, Brahma, was born on a lotus flower grown out of the transcendental abdomen of Vishnu. Vishnu is therefore known as Padmanabha. Brahma is known as Atmabhu because he was begotten directly from the father without any contact of mother Lakshmi ji. Lakshmi ji was present near Narayana, engaged in the service of the Lord, and still, without contact with Lakshmi ji, Narayana begot Brahma. This is the omnipotency of the Lord. One who foolishly considers Narayana like other living beings should take a lesson from this. Narayana is not an ordinary living being. He is the personality of Godhead himself, and he has all the potencies of all the senses in all parts of his transcendental body. An ordinary living beings begets a child by sexual intercourse, and he has no other means to beget a child other than the one designed for him. But Narayana, being omnipotent, is not bound to any condition of energy. He is complete and independent to do anything and everything by his various potencies, very easily and perfectly. Brahma is therefore directly the son of the father and was not put into the womb of a mother. Therefore, he is known as Atmabhu. This Brahma is in charge of further creations in the universe, secondarily reflected by the potency of the omnipotent. Within the halo of the universe, there is a transcendental planet known as Shwetadvipa, which is the abode of the Shirodakshayi Vishnu, the Paramatma feature of the Supreme Lord. Whenever there is a trouble in the universe that cannot be solved by the administrative demigods, they approach Brahmaji for a solution. And if it is not to be solved even by Brahmaji, then Brahmaji consults and prays to the Shirodakshayi Vishnu for an incarnation and solution to the problems. Such a problem arose when Kamsa and others were ruling over the earth, and the earth became too much overburdened by the misdeeds of the Asuras. Brahmaji, along with the other demigods, prayed at the shore of the Shiro, Shirodak ocean, and they were advised of the descent of Krishna as the son of Vasudev and Devaki. So some people say that the Lord appeared because of the prayers of Brahmaji. या तो श्रीमती कुंती देवी यहाँ पर विभिन्न कारणों की चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान क्यों प्रकट हुए. तो भगवान क्यों प्रकट हुए, तो ये भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन है. ये भी भगवान के उनकी प्रेयर्स में ही आ रहा है कि वो प्रकट, वो ये
डिस्कस कर रही है, पूरे संसार को बता रही है कि भगवान इस कारण से प्रकट हुए। भगवान इसलिए प्रकट हुए क्योंकि देवताओं ने प्रार्थना की। तो आपने देखा होगा हमारे सीरियल्स में दिखाया जाता था कि देवता जो है त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते थे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते थे कि पिता हे पितामह जो है हमारे ब्रह्मा जी हैं, वो चार सिर वाले, उनके पास जाकर वो कहते थे कि देखिए कितना असुरों ने वो कर रखा है। तो ब्रह्मा जी कहते चलो भगवान के पास चलते। तो श्वेत द्वीप नाम का प्लेनेट है, जो कि अभी ये प्लेनेट कहाँ दिखाई, हम लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहे हैं प्लेनेट, बिकॉज देर आर multiple dimensions in this universe which are not accessible by the human beings. Even science accepts there are multiple dimensions which are inaccessible, multiple dimensions. So there are various dimensions which are not accessible. So these planets are in those dimensions which are not available to be seen by naked eyes. हमारे जो आंख के देखने की बैंड विड्थ है, जो हमारी दृष्टि की बैंड विड्थ है, जो लैम्डा हम पढ़ते थे, तो वो बहुत छोटी है ना। वो उस बैंड विड्थ के अंदर जितना दिखता है वही हम देख पाते हैं अपनी नेकेड आइज से। हमारे जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज या अल्ट्रा जो इससे ऊपर की अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह, इंफ्रारेड रेज, तो ये सब रेज हमें दिखाई नहीं देती, कि ना उस साइड में ना इस साइड में। तो हमें अपनी आंखों से अगर हम भगवान को देखना चाहेंगे, इन प्लैनेट्स को देखना चाहेंगे, तो हमें नहीं दिखाई देंगे वो। दैट इज एक्चुअली that happens only with spiritual realizations, as you grow in spirituality. And sometimes these ashtang yogis, they can also see these dimensions. तो ये जो है ब्रह्मा जी वगैरह, ये अपने प्लैनेट से श्वेत द्वीप के किनारे पर जाते हैं। श्वेत द्वीप क्या है, वहां पर भी दूध का सागर है। और वहां पर क्योंकि और भी जगह दूध के सागर हैं, तो वहां दूध का सागर है। एंड श्वेत द्वीप के किनारे पे जाकर, तट पे जाके प्रार्थना करते हैं। वहां पर भगवान विष्णु का एक इनकारनेशन है। भगवान के विष्णु का एक इनकारनेशन कौन से, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो क्षीर सागर पर विराजमान है। तो ये भी मटेरियल वर्ल्ड का ही एक पार्ट है, बट इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, बिकॉज भगवान वहां पर है। एंड देर इज गर्भोदक्षाई विष्णु, जो भगवान विष्णु के सेकंड इनकारनेशन है, गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु कब आते हैं, जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो उसके उसके अंदर पहले पानी भर जाता है, हाफ वाटर, वो होता है कारण सागर का पानी होता है। कारण सागर के ऊपर कारणोदक्षाई विष्णु है, जो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बाउंड्री पर स्थित है। वो है कारण सागर। और उस कारण सागर पर कारणोदक्षाई विष्णु विराजमान है। वो जब सांस छोड़ते हैं, जब एक्सहेल करते हैं, तो उनके एक एक पोर से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। तो मल्टीपल यूनिवर्सेस कम आउट ऑफ हिज पोर्स, इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। एंड जब वो ब्रह्मांड बनता है, तो उसको उसमें आधा कारण सागर का पानी भरा होता है। एंड उस प्रत्येक ब्रह्मांड में, अगर आप एक ब्रह्मांड लेंगे उसको जूम कीजिए, तो उस ब्रह्मांड के अंदर क्या हो रहा है, आधा पानी भर गया। और उस ब्रह्मांड के उस गर्भ सागर, उसको गर्भ सागर बोलते हैं, उस गर्भ सागर के ऊपर फिर क्षीरोदक्षयी विष्णु आते हैं, दूसरा इनकारनेशन। और वो क्षीरोदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु आते हैं, गर्भ सागर है ना, तो उसके ऊपर गर्भोदक्षयी विष्णु आते हैं। और उनके नेवल से, उनकी नाभि से लोटस पैदा होता है। उस लोटस के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे, वो पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर फर्दर क्रिएशन करते हैं। कैसे करते हैं वो आएगा एक्चुअली, कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जब पहली बार आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता भी करना क्या है मुझे, पैदा हो गए बस। और उनको पूरा ज्ञान है, उनका बुद्धि का शरीर पूरा बना हुआ है। तो फिर वो तप उनको सुनाई देता है, तो तप करते हैं, फिर तप करते हैं, फिर उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान फिर उन्हें सब कुछ ज्ञान देते हैं। देन ही क्रिएट्स द यूनिवर्स। दिस इज द प्रोसेस विच विल कम इन फ्यूचर, हम पढ़ेंगे भागवतम में। तो भगवान अब ब्रह्मा जी को पैदा करने के लिए भगवान को लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो भगवान, इसीलिए आत्मभू, आत्मभू मतलब इनका नाम है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी इसलिए आत्मभू कहलाते क्योंकि वो स्वयं पैदा हुए, उनके लिए किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं हुई। तो भगवान ने स्वयं अपनी नाभि से उनको पैदा किया। तो भगवान जो क्रियाएं करते हैं, उनको किसी भौतिक संसाधन की आवश्यकता नहीं है, किसी और जीवात्मा की आवश्यकता ही नहीं है जिसके लिए उनको कुछ प्रोक्रिएशन करना पड़े। वो पूरा संसार क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जी को क्रिएट करते हैं, सब क्रिएट करते हैं, केवल अपनी पोटेंसी के आधार पर क्रिएट कर लेते हैं। तो इसीलिए भगवान इतने महान हैं। और भगवान से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। लोग बहुत सारे लोग आसानी से आजकल डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ।
अच्छा, तुम ही भगवान हो या तुम प्रणाम हो ऐसे भगवान को। तो जितने भी भगवान है इस संसार में, तो भगवान तो कहते हैं मैं कब कब आता हूँ, सब बताते हैं। तो ये एक अनदर आर्गुमेंट है कि भगवान क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी के बुलावे पर, देवताओं के बुलाने पर भगवान आए हैं। सो यहाँ पर और हाँ, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं वो परमात्मा के रूप में कण कण में विराजमान हो जाते हैं ब्रह्मांड के। जो ब्रह्मांड में फिर जो क्रिएशन होती है, उसके कण कण में परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु विराजमान होते हैं। तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं परमात्मा। जो हम कहते हैं ना परमात्मा कण कण में भगवान है, जो परमात्मा हमारे हृदय में, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो तीन विष्णु मैंने बताए, वो आप ध्यान रख सकते हैं। कौन कौन से बताए? नंबर वन, कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारण सागर पर विराजमान है। नंबर टू, गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भ सागर में ब्रह्मांड के केंद्र में विराजमान है। नंबर थ्री, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो श्वेत द्वीप पे विराजमान है, जो परमात्मा के रूप में इस संसार में प्रत्येक कण में जाते हैं, वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, ये तीन इनकारनेशन लोग जानते ही नहीं है। विष्णु, भगवान विष्णु से आते, भगवान विष्णु से आते हैं। विष्णु के तीन इनकारनेशन है, और तीनों इनकारनेशन का जो यूज अलग है। तीनों इनकारनेशन अलग अलग कार्य के लिए भगवान ने लिए हैं। सो वास्तव में अगर आप भागवत की जो कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, तो द विष्णु इज अनदर एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। Vishnu is actually an expansion of Krishna. Vishnu is not the first expansion, but he is one of the expansions of Krishna. सो अब हमारा जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि विष्णु से कृष्ण आए हैं। जब जब अवतार होता है तो विष्णु के थ्रू इनकारनेशन होता है, जो हमें जनरली दिखाया जाता है, सीरियल्स में पढ़ा है, और बहुत हमारे दादी बाबा सबने बताया है। लेकिन भागवतम जो हमारे वास्तव वास्तव के हमारे जो दादी बाबा हैं आपके, वो भागवतम है। भागवतम से आप उनसे पढ़िए तो देखिए, वहां से आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण का एक एक्सपेंशन है विष्णु, और कृष्ण ही ओरिजिनल स्रोत है। कृष्ण यही तो कह रहे हैं ना भगवत गीता में, मत्तः पर तरम नान्यथ, मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे सुप्रीम। तो जब देर इज वन लेक्चर विच वी जनरली गिव, कि कैसे कृष्ण ही विष्णु के स्रोत है। तो जब आपने देखा होगा कृष्ण ने लीला की थी, और कृष्ण ने इन गोप बालकों का रूप धर ब्रह्म विमोहन लीला की थी, तो गोप बालकों का रूप धरा था। तो जब लास्ट में ब्रह्मा जी बिविल्डर होके आए भगवान के पास और भगवान से माफी मांगी, तो उससे पहले क्या हुआ था, जितने कृष्ण थे सब विष्णु के रूप में उन्हें दिखाई दिए थे। सो देर आर देर आर जी जी। मल्टीपल। हाँ, यस ब्रो। हाँ ठीक है। एक थोड़ा सा ये था डाउट कि इसमें जैसे भगवान तो इनकारनेशन जैसे वराह रूप में लिए, फिर बावन रूप में लिए, फिर मत्स्य रूप में लिए, तो ये क्या, ये तीनों में से कोई अलग अलग अवतार लिए होंगे कि मतलब वो कृष्ण के ही अवतार के रूप में लिए होंगे? हाँ, तो जो भगवान विष्णु के थ्रू जो इनकारनेशन होते हैं, वो इनकारनेशन होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके थ्रू भी इनकारनेशन नहीं होते, उनके थ्रू इनकारनेशन होते हैं, लेकिन वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा, वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं। ठीक है, तो आज से 5,000 साल पहले जो कृष्ण का अवतार हुआ था, वो वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा वाला था। उसका भी टाइम निश्चित है, शास्त्रों में दिया हुआ है कब भगवान स्वयं आएंगे, तो कौन से मनवंतर में आएंगे, वो सब दिया है। तो उसके अनुसार भगवान स्वयं आता है। बाकी जो इनकारनेशंस होते हैं, ऑल अदर टाइम जो इनकारनेशन होते हैं, वो भगवान के विष्णु के थ्रू ही होते हैं। ये जो कृष्ण इनकारनेशन है, अदर टाइम्स ऑल्सो, अदर युगास लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट साइकिल आएगी, जब कलयुग की बाद सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, तो उस साइकिल में जो आएंगे कृष्ण, वो विष्णु के थ्रू अवतार लेंगे। तो अभी जो 5,000 साल पहले जो इनकारनेशन हुआ था, दैट इनकारनेशन इज डायरेक्ट। सिमिलरली ऑल अदर इनकारनेशन, नरसिंह, वराह, वामन, ये सब भी भगवान के विष्णु के थ्रू इनकारनेशन हो रहे हैं, उनके थ्रू इनकारनेशन हो रहे हैं। लेकिन जो अंश है, भगवान जो अपने आप को प्रकट करते हैं, वो कम कलाएं प्रकट करते हैं अलग अलग। जैसे मैं ज्योतिष की बात करूं, तो आप अगर पराशर ज्योतिष पढ़ेंगे, बृहद पराशर होरर शास्त्र पढ़ेंगे, तो क्या उसमें लिखा है कि वराह देव, नरसिंह देव और कृष्ण, ये जो अवतार हैं, ये पूर्ण अवतार हैं, अंश अवतार नहीं है। तो अंश
कभी कभी भगवान अपने अंश के रूप में भी अवतार लेते हैं। पूर्ण कलाएं उसमें नहीं दिखाते हैं भगवान, लेकिन वराह देव, नरसिंह देव, इनको पूर्ण अवतार माना जाता है। और ये उनकी कला कितना उन्होंने प्रदर्शित किया, दुनिया को कितना दिखाया। राम के रूप में उन्होंने केवल मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया, मर्यादा का इनकारनेशन लिया उन्होंने लिया। कृष्ण के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम दिखाया। और अलग अलग जैसे वामन देव, तो उन्होंने पूर्ण पूर्ण कलाएं अपनी नहीं दिखाई। उन्होंने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्य के लिए किया, वो इनकारनेशन लिया, वही उतना ही कार्य किया। ओके, सो दिस हैपेंस लाइक दैट। तो सारे इनकारनेशंस अलग अलग होते हैं, बट वंस इन ए डे ऑफ ब्रह्मा भगवान स्वयं आते हैं। वो स्वयं मतलब पूर्ण अवतार है भगवान का। तो ये कृष्ण जो अभी आए वो पूर्ण अवतार कहे हैं, वो पूर्ण अवतार कहे जाते हैं। यही क्वेश्चन था प्रभु आपका, डज इट मेक सेंस फॉर यू? यस प्रभु जी, मतलब मेरा थोड़ा सा ये था कि क्या जो तीन विष्णु का प्रकार बताया आप, तो जो तीन भगवान विष्णु हैं, तो उनमें से मतलब क्या कहते हैं, ऐसा कुछ रहता है कि उनमें से कोई, जैसे नरसिंह भगवान कोई पर्टिकुलर विष्णु के अवतार होंगे, या वो पूर्ण कृष्ण भगवान के ही अवतार थे? मतलब ऐसा था, या तो तीनों में से कोई एक पर्टिकुलर, जैसे वो गर्भोदक्ष विष्णु और और ये श्वेत द्वीप वाले विष्णु जो भगवान विष्णु, और एक और जो कारण विष्णु आप बताएं, उसमें से कोई पर्टिकुलर अवतार थे, या फिर वो पूर्ण कृष्ण के ही अवतार थे? मतलब मेरा ये थोड़ा सा ऐसा प्रश्न था। ये जो इनकारनेशन है, जो सारे इनकारनेशन होते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के थ्रू होते हैं इनकारनेशन। गर्भोदक्षाई विष्णु का अलग काम है, वो ब्रह्मांड के अंदर क्रिएशन का काम है। कारणोदक्षाई विष्णु का जो काम है, वो सारे ब्रह्मांडों को क्रिएट करते हैं अपने पुर से। तो बाकी सारे जितने इनकारनेशन होते हैं केवल क्षीरोदक्षाई विष्णु के थ्रू होते हैं। हाँ, यही यही प्रश्न था प्रभु, यही यही। तो सारे थैंक इनकारनेशन यू। क्षीरोदक्षाई विष्णु के थ्रू होते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।